हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रोफेसर दीदी। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। आई होप आप लोग सब मज़े में हैं, आप लोग सब खुश हैं। एंड वंस अगेन आई होप योर जोश इज़ वेरी वेरी हाई। If you remember, in our last session, we ended our session on the thought as to why do we need modern rule? When we already have golden rules of accounting, what is the need for modern rule? What is the need for modern rule? Before we discuss what is the need for modern rule, let's revise what we did that day. Double entry system and golden rules. The reason I'm revising this because these three things, these three principles and rules are extremely important. ये ना आपके ब्लड में हो जाना चाहिए, घुस जाना चाहिए एकदम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स. Both the effects are equal in amount. One of the effect is debited and one of the effect is credited. One of the effect is debited and one of the effect is credited. Which effect will be debited and which effect will be credited is determined by golden rules of accounting. And what does golden rules of accounting say? It says that there are three accounts: personal, real, nominal. For personal account, we debit the receiver, credit the giver. For real account, we debit what comes in, credit what goes out. For nominal account, we debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. When we already had this well-defined golden rules, why do we need modern rule? I'll tell you why. What happens is, there are few transactions जिसमें ना बहुत confusion होता है. There is a lot of ambiguity as to we are not able to decide, we are not able to understand which account shall we debit or maybe which account shall we credit. To remove this ambiguity, modern rules was introduced. To remove this ambiguity, modern rules were introduced. Modern rules ने क्या किया ना, पूरे ट्रांजैक्शंस को क्या पॉसिबल टुकड़े हो सकते हैं, मतलब व्हाट इफेक्ट कैन बी देयर, उन सबको टुकड़ों में बांट दिया. व्हाट कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें व्हाट विल बी द इफेक्ट्स, आइदर एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, कैपिटल और लायबिलिटी. इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. सो क्या किया मॉडर्न रूल्स ने? इन सबको एकदम टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया एंड उसमें बोल दिया कि हर एक रिस्पेक्टिव चीज में क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है. ये सब कंफ्यूजन हो रहे हैं. होल्ड दैट थॉट. सो व्हाट वी विल डू इज कि ये समझाने से पहले कि मॉडर्न रूल है क्या, व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस मॉडर्न रूल चाहिए क्यों. तो हम लोग एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं. ये एक एग्जाम्पल देखिए. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. लेट्स ट्राई टू record this transaction. Let's try to solve this transaction using golden rules. We know as per golden rules, for nominal account, debit all expenses and losses, and interest expense is an expense. Interest expense is an expense. So nominal account के हिसाब से ये तो हमें समझ में आ गया. We will debit this. What will we credit? यहाँ तो पार्टी का नाम नहीं लिखा है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर कहां से आएगा? यहाँ पे द नेम इज नॉट देयर एंड वी नो इट्स अ लायबिलिटी. एंड गोल्डन रूल्स लायबिलिटी को लेकर कुछ बोलता ही नहीं है ना. सो हाउ विल वी अंडरस्टैंड विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड और विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड? ये लायबिलिटी को कहां दिखा है? वी हैवंट मेड एनी पेमेंट येट. सो दिस इज द रीजन. ये एक एम्बिग्विटी, इट्स नॉट दैट कि गोल्डन रूल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट एक एम्बिग्विटी. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग गोल्डन रूल्स, आई एम नॉट सेइंग गोल्डन रूल्स आर रॉन्ग. आई एम सेइंग देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एम्बिग्विटी देयर. वो कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया किसने? मॉडर्न रूल ने. सो मॉडर्न रूल बोलता क्या है? एज आई सेड, मॉडर्न रूल ने क्या किया कि एक ट्रांजैक्शन में कितने पॉसिबल अकाउंट्स में इफेक्ट आ सकता है उसको पहले देख लो. एसेट,
liability, income, gain, expense, losses, capital, right? So for assets क्या बोलता है ये? Debit when asset increases, credit when asset decreases. So what we will do, we will try to understand, rather we will try to learn modern rule with the help of golden rule. Golden rule में बोलते हैं ना, real account debit what comes in, credit what goes out. Real account क्या होता है? Asset. So debit what comes in, debit when assets come in, right? So comes in means what? जब कोई asset आ रहा है हमारे पास, जब कोई asset ना आ रहा है business में, it means what? Asset is increasing in the business. So debit what comes in, उसी वजह से debit when asset increases. Credit what goes out means asset जब जा रहा है business से, means what? Credit when asset decreases. So asset clear हो गया. Debit when asset increases, credit when asset decreases. अब expense and losses, same thing. Nominal account, debit all expenses and losses. Means जब expense हो रहा है, we debit. It means what? When expense is increasing, we debit. When expense is decreasing, we credit. Same thing is with the loss. When loss increases, we debit. When loss decreases, we credit. What about income and gain? What about income and gain? Nominal account. Golden rule में क्या बोल रहे हैं? Credit all incomes and gain. Means whenever any income is accrued, what we will do? Whenever any income is earned, what we will do? We will credit. Means what? Income increase हो रहा है, credit. Decrease हो रहा है, debit. Okay. We are clear with asset, we are clear with expenses and losses, and we are also clear with incomes and gains. Now what about liability? Now we know liability is something that we have to pay. It is an obligation for the business. सर दर्द है भाई, पेमेंट करना पड़ेगा. कर्ज पे करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, जबरदस्ती, मतलब पे तो करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते. सो ये कब आ सकता है? जब वी हैव टेकन समथिंग फ्रॉम द काउंटर पार्टी एंड उसका ना कॉम्पनसेशन नहीं दिया, उसका पेमेंट नहीं दिया, या जो भी कुछ उसके बदले मुझे देना था मैंने नहीं दिया, तभी तो आ जाती है लाइबिलिटी. सो इफ यू रिमेंबर इन गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो लाइबिलिटी तो तभी आएगा ना जब हमने किसी से कुछ लिया हो, फेवर या लोन या गुड्स क्रेडिट में, या एक्सपेंस इनकर बेनिफिट ले लिया, पेमेंट नहीं किया. When someone has given us something, it means what? Debit the receiver, credit the giver. Credit the giver means what? जब liability आ रही है, liability increase हो रही है, credit, and liability decrease होगी तो debit. So debit when liability decreases, credit when liability increases. Clear? Now what about capital? Capital का भी ना same ही accounting treatment होगा. But when I say same accounting treatment, it doesn't mean capital and liability are same. They are not same. Please इसको याद रखो. Liability is an obligation. Capital is owner's contribution to the business. Owner business में जो भी कुछ ला रहा है उसे हम कहते हैं capital. It is not an obligation for the business to pay it back. Owner के पास right है कि after all the dues are cleared, जो भी बाकी रहेगा वो owner का. बट अगर कुछ नहीं बाकी रहा तो वो बेयर कौन करेगा? ओनर. सो कैपिटल एंड लाइबिलिटी आर नॉट सेम. यस, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम. सो व्हेन ओनर इज ब्रिंगिंग एनीथिंग इन द बिजनेस, इट मीन्स व्हाट? वो कुछ दे रहा है बिजनेस को. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो कैपिटल व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस, डेबिट. ये था हमारा मॉडर्न रूल. एसेट व्हेन इंक्रीजेस, डेबिट व्हेन डिक्रीजेस, क्रेडिट. एक्सपेंस एंड लॉस व्हेन इंक्रीजेस, डेबिट व्हेन डिक्रीजेस, क्रेडिट. इनकम एंड गेन व्हेन डिक्रीजेस, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट. लायबिलिटी व्हेन डिक्रीजेस, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट. कैपिटल व्हेन डिक्रीजेस, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट. Is this clear?
एंड आई होप ये चीज भी क्लियर हुआ हो कि क्यों मॉडर्न रूल, क्यों गोल्डन रूल को विलन बना दिया गया. विलन नहीं बनाया गोल्डन रूल को. इट इज जस्ट दैट गोल्डन रूल में थोड़ा सा एम्बिग्विटी, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी था. उसे प्रॉपर क्लियर करने के लिए मॉडर्न रूल आ गया हमारे पास, हमें बचाने के लिए, लाइक अ सुपरमैन. ओके, so now let's once again discuss this example, discuss this transaction. Interest expense is due but not paid. खर्चा हुआ, पेमेंट करना बाकी है. पेमेंट करना बाकी means liability. The name of this liability is outstanding interest. And since it is not paid, the liability is there and liability is increasing. As per modern rule, we credit when liability increases and it is an expense. As per modern rule, we debit when expense increases. So interest expense will be debited and outstanding interest will be credited. So, okay, clear? So, interest expense, right? Interest expense. This is one account. What is happening? It is an expense and it is increasing. So, what we will do? We will debit this. And another one is what? Another one is what? Outstanding interest. What is this? This is liability. क्या हो रहा है? Liability is increasing. So what we will do? We will credit it. तो कौन से दो accounts हो गए? Interest account, जिसको हम करेंगे डेबिट, और दूसरा हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जिसको हम करेंगे क्रेडिट. नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई होप ये क्लियर हो गया हो. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. डेप्रिशिएट मशीनरी बाय ₹5,000. डेप्रिशिएट मशीनरी बाय ₹5,000. Depreciate machinery by ₹5,000. What do you mean by depreciation? Whenever you use any machine, the usefulness of that decreases due to wear and tear. इसका और भी बहुत सारा पर्पस होता है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में. But just for now, for the sake of this example, just a brief intro on what is depreciation. For example, if you're using a smartphone, जिस एफिशिएंसी के साथ वो डे 1 में यूज हो रहा है ना, चल रहा है ना, आफ्टर 6 मंथ वो वैसे नहीं चलेगा. वाई? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टियर. देयर इज अ डिक्रीज, देयर इज अ ग्रेजुअल इरोजन, गिरावट इन द वैल्यू ऑफ, इन द यूजफुलनेस ऑफ द स्मार्टफोन. सो दिस इज व्हाट? डेप्रिसिएशन. इट मीन्स व्हाट? हमने कोई चीज यूज कर लिया, हमने ना एक मशीन का कोई पोर्शन यूज कर लिया. इफ यू रिमेंबर, एनीथिंग दैट यू यूज इज व्हाट? Expense. So the name of this expense is depreciation. And don't worry, depreciation एक अलग से proper video बनाऊंगी जिसमें properly explain करेंगे उसको. We'll discuss the purpose behind depreciation and everything. But we know depreciation is an expense and it is a gradual erosion in the value of fixed assets due to wear and tear, या maybe due to passage of time. Time के साथ साथ वो उसका usefulness कम हो रहा है, या बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, या ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस. ऑब्सोलिसेंस मतलब आउटडेटेड हो गया, हटाना पड़ेगा उसे. इट्स एन एक्सपेंस. अब हो क्या रहा है? यूजफुलनेस कम हो रही है मशीन की. स्मार्टफोन 6 महीने बाद उतना एफिशिएंटली नहीं चलेगा. बट क्या गोल्डन रूल में अगर याद रखो, रियल अकाउंट से, अच्छा वी नो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, वी नो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. सो नॉमिनल अकाउंट जो गोल्डन रूल में बोल रहा है डेबिट और एक्सपेंसेस, वो तो हो जाएगा. What about machinery? मशीनरी के लिए गोल्डन रूल तो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मशीनरी जा थोड़ी रहा है, मशीन तो हमारे पास ही है. स्मार्टफोन 6 मंथ बाद अब यूज कर रहे हो, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, बट वो गायब थोड़ी हो गया, छूमंतर हुआ थोड़ी, वो तो अभी भी है ना. इट इज ऑलरेडी देयर, सो इट्स नॉट गोइंग आउट. कैसे बैठाओगे उसको? बट हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है. ये क्या आ गया? मॉडर्न रूल. दिख रहा है द कंफ्यूजन, द एम्बिग्विटी जो गोल्डन रूल दे रहा था, और उसी एम्बिग्विटी को क्लियर कर रहा है कौन? मॉडर्न रूल. जो बोल रहे हैं द वैल्यू इज डिक्रीजिंग मीन्स व्हाट? एसेट इज डिक्रीजिंग. व्हेन द एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हाट वी विल डू? क्रेडिट. एंड डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इट इज इंक्रीजिंग, व्हाट वी विल डू? डेबिट. Is this clear, everyone?
आई होप ये चीज़ समझ आ रहा हो कि क्या एम्बिग्विटी था जो गोल्डन रूल सॉल्व नहीं कर पाया, बट मॉडर्न रूल उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है. गलत दोनों ही नहीं है. Both the rules are absolutely correct, but it is just that the confusion that was created because of golden rules of accounting, it is sorted with the help of modern rules of accounting. Is this clear? Great. So over here, what is happening? Depreciation is one account. Depreciation is one effect that is getting impacted, and it is what? Expense. Expense क्या हो रहा है? Increase. What we will do? Debit this, right? Depreciate machinery by 5,000. So depreciation. अब दूसरा इफेक्ट क्या है? Machine, the value of machine is decreasing. This is another account. ये क्या हो रहा है? It is an asset. Asset is decreasing. So what we will do? Credit. So कौन से दो इफेक्ट हो गए? कौन से दो इफेक्ट हो गए? Depreciation अकाउंट, जिसको हम करेंगे डेबिट, एंड मशीनरी अकाउंट, जिसको हम करेंगे क्रेडिट. दिस कंप्लीट्स our modern rules of accounting. So we are clear with double entry system, golden rules of accounting and modern rules of accounting. इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, so that there is no confusion. आपको भूलना नहीं है. ये तो इतना अच्छे से घोल के अपने बॉडी में, अपने ब्लड में मिला लो ना कि नींद में, सपने में भी आपसे पूछे तो आप बोल पाओ आंसर्स. ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, मज़ा आया हो पढ़ के. डू कॉमेंट, प्लीज़ कमेंट करिएगा एज टू वेदर यू लाइक द क्लास, वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. जल्द ही मुलाकात होगी. बाय बाय, टेक केयर.